ये साहब हैं, अगर आज इनकी नौकरी नहीं लगी होती तो ये भी हमारे साथ होते साहब। ये सब साहब हमारे साथ होते हैं, इनमें से ये कहें, ये कोई अलग नहीं है मैडम। आपकी जॉब नहीं लगी होती तो आप हमारे साथ होते ना आज, बिल्कुल होते। रिजाइन लेने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करे गवर्नमेंट, हम ये चाहते हैं। हेलो गाइज, सो वी आर ऑल्सो एट जंतर मंतर। कल जो भी यहाँ पे घटनाएं हुई हैं उसके बाद वी आर हेयर टू कवर व्हाट द सिचुएशन इज करेंटली राइट नाउ। ऐसा आप देख सकते हैं, इधर द क्राउड इज स्टिल वेरी मच देयर, इट इज़ अ मूविंग क्राउड। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जंतर मंतर मेरे पीछे है और क्राउड अभी आगे ज़्यादा है। तो वी आर गोना गो इन ऑल्सो एंड वी आर गोना आस्क स्टूडेंट्स कि what they actually think about what happened yesterday, what they think about where the education is going, if they have any ideas to give कि how the education sector should reform. Their ideas matter the most because मैं और आप हम वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, बट एक्चुअल स्टूडेंट्स जो ग्राउंड पे हैं, जिनको ये डिग्रीज करनी है, जिनको पढ़ाई करनी है, वो कितना क्या सोच रहे हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में। My brother, he also gave the NEET exam. He gave the NEET exam 2 years back. There was a paper leak that was during that point as well. My brother also had options. He's also a privileged person like me. He had options. Even if he didn't get a seat, we could pay the money and we could get a management seat. We had all the other options. But still, I could see how much it affected my brother. I could see how much it affected, no matter, even if he had options, even if he was a privileged person, he had those options. And for those people who don't have it, we need to take a stand. And even there's many people here who will ask, everyone's recording someone, everyone's taking videos. What's the point of this? What change is gonna be there? But the only way, no one's covering this in main media. So the point is, the only way people see this is because of people like you, people like us. For example, one of the question that I ask everyone is India's gross enrollment ratio is 30%, which means for every 100 student that passes class 12th, only 30 of them go into graduation. 70 of them don't go into graduation. What does the youth think is the reason for that? You're completely valid in that take. Online degrees are completely on the rise. There's many new colleges which are, they take up parts with other colleges and then they give a degree to you. There's completely, and there's obviously it gives the ease to students for having an opportunity that way. Because not everyone can move different states. I have gone to Bangalore to get a college there. I gave the JE. My JE wasn't as well, but I still have the opportunity to go there. Same, my JE was also. So we were privileged, right? You and me, we have other options. So for people who don't have that, who do not have the capabilities to go to a different state, study there, have a stay in a hostel there, because hostel fees are expensive. College fees are expensive. Everything is expensive. Especially Bangalore is expensive, like crazy. Okay. So things like this, where these online platforms are there, that's completely valid, and it gives the opportunity to every single person. Even then, the fees are there, but it's marginally, incredibly different. And so it is completely valid, and I would say it's a good option for people who don't have that option. मतलब इतनी एनर्जी बढ़ गई है ना कि जो लोग कल नहीं भी आए थे ना, जिनको लगा था शायद नहीं भी जाना चाहिए, वो आज आए हैं और वो अब बोल रहे हैं कि अब आएंगे और अब ये नहीं रुकेगा। कब से आप हो प्रोटेस्ट साइट पे? मैं परसों आया था रात को, उड़ीसा से आया हूँ मैं पहली बार। तो क्योंकि मेरे को पता है कि धर्मेंद्र प्रधान मेरे गांव का है, बुरा लगता ना यार, गांव का नाम खराब हो रहा है तो आना पड़ता है। तो इसलिए मैं अकेले मम्मी को बोला मैं जा रहा हूँ दोस्त के घर पे बोल के। तो आप यहाँ पे वॉलंटरी वर्क कर रहे हो ऐसे? अरे देश मेरा ही है, घर ही है यार मेरा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू। गंदगी हम भी झेल ही सकते हैं। कैसा सुधार करने की जरूरत है भाई। अभी एनसीईआरटी की किताब उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग गए थे मार्केट में लेने के लिए, नहीं मिले, और हर जगह पेपर लीक हो रही है। कोई बात थोड़ी होती है, हम लोग भी तैयारी करते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट है। कब तक झेलेंगे भाई? अब नहीं होता है भाई बर्दाश्त। 4 साल 5 साल बर्बाद हो जा रहे हैं, क्या झक मारेंगे हम लोग? सरकार की तरफ से चेंजेस की, सरकार की तरफ से जो चेंजेस हो सकते हैं, सबसे पहले ये पेपर लीक्स होती है आए दिन, हर 2-3 हफ्ते में 4 हफ्ते में खबर आती है यहाँ पेपर लीक हो गया। कम से कम इसे रोके, सबसे पहले इसे रोके। फिर जो रिफॉर्म्स है, तो रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए जो अपना आइडियाज देना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुने उन्हें। सरकार सुनेगी, सरकार बच्चों की सुनेगी, सरकार उस तरह से काम करेगी तो चेंजेस आएंगे। सबसे पहले कि अकाउंटेबिलिटी ले, जो लीक्स होते हैं, जो काउंसलिंग वगैरह होती है, काउंसलिंग इतनी डिले होती है, इन सब चीजों में जो व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग? एडमिशन की जो प्रोसेस होती है बहुत लेंदी और बहुत हेक्टिक होती है, उसे आसान बनाया जाए। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज स्कूल लेवल एजुकेशन। स्कूल लेवल एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारा, वो काफी चरमराया हुआ है। उसमें चेंजेस की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 12th तक हम लोग इस तरह से पढ़ रहे होते हैं कि 10th तक पढ़ाएगी, 10th के बाद की आपको एक स्ट्रीम चुननी है 11th में।
10th तक भी उसमें कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिलता नहीं है। हाँ, मैं ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के मौके होते हैं। मैं गांव से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे 10th तक पता नहीं था कि नीट एग्जाम क्या होती है, IIT एग्जाम क्या होती है, बायो लेके क्या किया जाता है, मैथ्स लेके क्या किया जाता है, कॉमर्स लेके आगे क्या किया जाता है। मैं जब 11th में आया, शहर गया, मुझे पता चला कि नीट की एग्जाम होती है, PMT की एग्जाम होती है उस टाइम पे, PMT की एग्जाम होती है, एम्स की एग्जाम होती है। ये सब मुझे तब पता चला जब वहाँ पे जाने के बाद 2 महीने 3 महीने बाद फिर मैंने इनके बारे में पता किया और फिर कैसे पढ़ाई करनी है। तो समस्या उस स्कूल लेवल की एजुकेशन में है जहाँ पे बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो हमें रिफॉर्म्स वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्टार्टिंग में नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर देखें तो बिहार के बहुत गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, राइट। बिहार के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है इसमें। आप ऐसा है, अग्री विद एवरी पॉइंट्स कि आप सबके गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट अगर स्टार्ट हो रही है पॉइंट 1 से, आप जब जाओगे इस गांव के स्कूलों में तो आपको पता चलेगा कि बचपन से उनकी पढ़ाई हो नहीं रही है। आप 12th तक 10th तक उस सिटी में कॉलेज ही अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, एक बच्चे को एक्स्ट्रा पैसा उसके फैमिली को देना पड़ रहा है। मतलब वो इंसान अगर जमीन बेच रहा है, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा कुछ करे, और फिर आके ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और पता है यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगी, जो मैं पहले बोलना चाह रही थी, कि इसमें से अगर बच्चे डेथ हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उसमें से और बहुत ऐसे बच्चे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20 पीपल ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनके फैमिली ने उनको बहुत फोर्सली करके, बेटा यू हैव टू डू इट, एंड दे आर सेइंग नहीं बेटा, हमने तो बस आपको परमिशन दिया था, हम आपके साथ थे, लेकिन आपको नहीं पता है कि कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा उसको, वो कितना मेहनत कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बार बार फोर्स कर रहा है। वो अगर बच्चा डेथ कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पेपर लीक, आई एम एग्री विद यू, बट द सेकंड थिंग इज, एंड द फर्स्ट थिंग इज कि उनकी फैमिली जो है उनको इतना ज्यादा फोर्स कर चुकी है कि तुम अगर नीट नहीं दे पाओगे तो मतलब तुम लायक नहीं हो। एज यूथ जितने यंग लोग हैं जो डिग्रीज कर रहे हैं या डिग्रीज करना चाह रहे हैं, वो और क्या क्या चेंजेस एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स चाह रहे हैं? पूरा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होने की जरूरत है। जैसे और मतलब जैसे लोअर लेवल से, स्कूल से ही लोअर लेवल एग्जाम तो लास्ट स्टेज होता है मेरे हिसाब से, उसके बाद तो आदमी सेट ही हो जाता है। एक एग्जाम क्लियर हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी सेट है लाइफ। पर जो लोअर स्टेज है वो जीरो। अवेयरनेस नहीं है बच्चों में, कौन सी नहीं, डिग्री awareness करनी नहीं चाहिए, है, कौन सा और कोर्स करना चाहिए। फैसिलिटीज भी उतनी अच्छी नहीं है। जितना हम टैक्स दे रहे हैं, मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ तो 3.5 लाख रुपए टैक्स देता आदमी, उसके बदले में अपने बच्चे को सरकार के स्कूल में नहीं भेज सकता, कोई भी नहीं भेज सकता। तो हम सरकार को टैक्स देके उससे इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सिवाय टैक्स पे टैक्स, उसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक सेफ्टी जो होती है, बेयर मिनिमम है सेफ्टी, वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सरकार से। I mean, first, the school should be the target because that is the base where the base of education is started. And then I think there is a huge need to redesign the courses of the colleges as well, not only for the medical field, but for each and every field. Like what we are studying in the DU University, we can take the example of the syllabus is so outdated. So I think we should, we have a lot of things to do. And the government should focus on that. And I think you should ask. Yeah, I'm a medical student. I gave my first attempt when paper leak happened, and तब मेरा कट ऑफ अच्छा था, बट देन कट ऑफ के चलते मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। बट देन उसके बाद आई थिंक इनको करप्शन इसके बाहर ही रखना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आप डॉक्टर्स हैं और आप फ्यूचर डॉक्टर्स को ऐसे बनाएंगे तो देश के पूरे जनता के हाथ, सॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स के हाथ में भी होती है। अगर उसमें करप्शन होगा तो फिर आप देख लो आप कैसा फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कंट्री के अंदर। आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑल्सो गुड दैट इट्स गोइंग ऑन, कि बाकी छोटे रिमोट एरिया से दे कैन स्टडी फ्रॉम फोन एंड एवरीथिंग, एंड अब कोर्सेज भी मोस्ट ऑफ द कोचिंग गिव लाइक फीजेबल अमाउंट में एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट्स गुड, बट खैर वही बात है, जितना पढ़ लो आप एंड में तो जिसको ले जाना है वही ले जाएगा। What is your overview of the whole protest happening right now? I think it's very peaceful right now. There are people who are doing like Naribazi and all is happening, and on the other side there's barricading. There are students who are like jam packed there, and they are also protesting very peacefully. I don't think there's place for violence here, and I hope that doesn't happen today. Finally, it is like 4:20, and we are ending today's session, ending today's interview. It was a crazy experience. Camera person will show you. The crowd is insane. crowd बढ़ते जा रहा है। शाम तक तो crowd कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। जब हम आए थे तो crowd आगे तक था, बट अब पीछे तक पूरे की पूरे इस रोड पे crowd हो चुका है।
और स्टूडेंट्स की डिमांड्स अभी तक हिली नहीं है. दे आर स्टिल एडमेंट, दे आर स्टिल very much full of energy and asking the same questions they were asking yesterday despite whatever happened yesterday. We tried to cover all of it as honestly as we could. We tried to get as many answers as we could. Civic sense, जो जिस पे हमेशा मीम्स बनते रहते हैं और जिस पे मीम्स शायद जेनजी सबसे ज़्यादा बनाती है, बट वो सिविक सेंस आज अगर कहीं देखने को मिला है तो इन्हीं जेनजीज के बीच में देखने को मिला है. दे आर हेयर, दे आर एक्टिव एंड दे आर अलाइव. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल.